वीर मराठी के लिए शरद केल कल खेल रहे हैं 13 रन पर, देशमुख एक छक्के के साथ 7 रन पर, और काफी बैटिंग अभी भी बाकी है। और बलविंदर सिंह संधू के साथ अब कमेंट्री बॉक्स में अमोल मजूमदार भी शामिल। गोवा नेक्स्ट CCL पावर्ड बाय पार्ले कुकीज एंड पैनासोनिक, स्वागत करते हैं आपका। बेहतरीन फील्डिंग और 1 रन का इजाफा वीर मराठी के लिए। महेश एक स्टार एक्टर हैं, बड़े सुपरस्टार हैं। और 10.2 ओवर हो चुके हैं। और इफ यू हैव टू लाइक अस ऑन फेसबुक, प्लीज गो ऑन www.facebook.com/CCL। ज़रूर अपना लाइक्स कीजिए। बहुत ही अहम मुकाबला ये वीर मराठी के लिए, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रितेश देशमुख के इनिंग्स। एक अच्छी इनिंग खेल सकते हैं, हालांकि बड़े शॉट भी खेल सकते हैं, बट उसके साथ साथ 1 और 2 भी रन बना सकते हैं, तो उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा यहाँ पे। आप कोचिंग कर चुके हैं मुंबई हीरोज़ के लिए सर, तो आप अगर कोच होंगे तो अब क्या मैसेज भेजेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि सिंगल्स और 1 और 2 रन पे ध्यान दें, और जो लूज बॉल मिले उसे जोर से मारने के बदले टाइमिंग के लिए जाएं, क्योंकि इस विकेट पे उतने जोर से मारने की कोशिश में बॉल मिस कर रहे हैं और शॉट नहीं मारे हैं। अगर इस औसत से खेले 5.53 से तो जस्ट ओवर 100 कर सकते हैं। और ये बेहतरीन शॉट, लेकिन लगता सीधे फील्डर के पास, और ये आउट। और इम्पोर्टेंट विकेट रितेश देशमुख तो अच्छी बैटिंग कर रहे थे। 59 for 3 कर्नाटका बुलडोजर्स एक बहुत इम्पोर्टेंट विकेट ले चुके हैं। हालांकि टॉप एज हो गई और डीप मिड विकेट पे फील्डर ने कोई मौका नहीं गवाया, और कर्नाटका बुलडोजर्स के सपोर्टर्स आर डिलाइटेड। दिगंत की अच्छी कैच और एक इम्पोर्टेंट विकेट ली उन्होंने, जरूरी। रितेश देशमुख आउट फॉर 9, 59 for 3। तीसरी सफलता बुलडोजर्स के लिए, और उसकी वजह से आगे बैटिंग करने दूधवाड़कर वीर मराठी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विकेट ले चुके हैं। उनके कप्तान वापस पेविलियन पहुंच चुके हैं, रितेश देशमुख। 60 पर 3 11 ओवर की समाप्ति पर। Well, he's a great actor off the field. Okay, you need to be more clearer because you said...
नहीं, मुझे लग रहा था Well, he's a great cricketer off the field, and on the field he seems to be even better, an actor and a cricketer, so to say. How are you feeling, Mr. Makran Deshpande? well excited and tense a bit, and because what the wicket seemed to be a nice bouncy track. It's coming across as a two-pace wicket, deceptive, and we just had one unfortunate run out and just lost our captain. So maybe that is why, but yet we have batsmen. I think we need around about 140. But tell me, like, how is the feel at the moment in the changing room? Because, I mean, you guys really have to pull it in this game. Actually, like the last match against Kerala Strikers, almost it was towards, say, 16th over, we were there, you know, winning the match. And it's just unfortunate that we lost the match. But from that match, we are so confident, and you know, we actually have no apprehension or no doubt about winning this match. It's just the cause of it. What the wicket is going to do is, we are in good shape. I know, I see you have one eye on the field as you're talking to me. One eye is just on the field. I spoke to Janelia and and I know that the captain Vitesh himself and Janelia are so passionate about the team. Is there anything that they've told you guys to motivate you? Janelia said, "I'll cheer up if you win." No. But the best part about it is, I think they want us to play in great spirit, and they know that we've been practicing, so we are ready. It's just one of those unfortunate days. The best part is about when we leave our hotel and we come to and that's the bus where everybody speaks, you know, and cheers, and you know, they have their last kind of a talk, and it's exciting to listen to, you know, all the time. And all of a sudden Ritesh would say, "I think I've spoken about it, you know it, okay, laugh, come on, got to make it." That's it. So it is actually no pressure, and we're playing. Well, I mean, that just shows good team spirit when you're on the coach and everybody's talking good, giving each other good motivation. Do you think the weather affects it a little bit? Because I have to say, it's really hot. I can't imagine running around and batting and bowling. Yes, it is dehydrating. I mean, it looks great, but because of the music and the atmosphere, we really don't feel it. But it is hot. Players who are playing, they know it. But I tell you, this is for us, is beyond all this, you know. We don't mind it, you know, even falling there. Because, I mean, when do you get this chance? I mean, the way CCL is happening and people are responding. And after the Kerala match, we went back home. The match was in Dubai, but when we were back home, it was almost like everybody, "Hey, you were going to win and you were well played, man." So you feel so good, you know. So because it's evident that you're definitely trying, and I wish you and your team all the best. Hail, rain, wind, water, heat, do well. Thank you so much. I'm sending it back to you. Well, 72 for 3, 11.5 overs gone. और ये सबसे प्रोडक्टिव ओवर रह चुकी है वीर मराठी के इनिंग्स में. फुल टॉस गेंद सीधी डीप कवर्स के पास, बट सिर्फ 1 रन मिलेंगे. 12 ओवर की समाप्ति पर 73 for 3. स्वागत है आपका सभी का गोवा निकोफिक्स CCL सीजन 4 पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक. वीर मराठी ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने की कोशिश उनकी, और अब तक 73 पर 3, 12 ओवर की समाप्ति पर. पिछला ओवर सर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी प्रोडक्टिव. आई थिंक नुपुर दुधवाड़कर आने के बाद गति आई है स्कोरिंग में, और
पॉजिटिव दिख रहे हैं और जो गति चाहिए थी मुझे लगता है कि दौड़ करके आने से उन्हें मिली है और इस गति को कायम रखना जरूरी है इनके लिए। अब बिल्कुल एक कोच की तरह बात कर रहे हैं यहाँ पर। मैं कमेंटेटर कम हूँ, कोच ही ज़्यादा हूँ। वो तो हमें पता है, आप मुंबई के कोच भी रह चुके हैं, काफ़ी स्टेट साइड को कोच कर चुके हैं और हालांकि सीसीएल में भी आपका योगदान रहा है, आपने मुंबई हीरोज़ के लिए भी कोचिंग किया है। और आप देख सकते हैं ट्विटर क्वेश्चन आंसर्स पावर्ड बाय फ्रोल, क्वेश्चंस एट सीसीएल, विल कम बैक विद दैट। कट करने की कोशिश बट 1 रन ही मिलेगा। 75 पे 3 वीर मराठी, ये टाइम है उनको अपना पेस बढ़ाने के लिए। CCL4 commentator at Mantramugd wants to know your dream lineup for a women's celebrity cricket league. 75 पे 3 हैं 12 ओवरों में, 3 विकेटें गई हैं, विकेटें इनके हाथ में हैं और ये अच्छे कर सकते हैं। और ये शॉट मिड ऑन की तरफ, अच्छी फील्ड की। सर आपका कैसा एक्सपीरियंस था मुंबई हीरोज के लिए? 2 साल पहले आप उनके कोच थे और काफ़ी योगदान रहा है आपका। मुंबई हीरोज़ के लिए ना मैं कोच था CCL 2 में, तो मैंने काफ़ी एंजॉय किया इनके साथ में काम करते हुए। बहुत कमिटेड थे सारे एक्टर्स और सिर्फ एक ही दिक्कत होती थी मुझे कि मैं रात को 10:30 बजे सो जाता हूँ और इनकी प्रैक्टिस 11-12 बजे तक चलती थी। अच्छा लगा सुनकर आपके ऑनेस्ट ओपिनियंस। पर उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि वो सारा दिन एक्टिंग रोल करके आते हैं और शाम को ही उन्हें वक्त मिलता है प्रैक्टिस करने का। लेकिन उनकी जब कमिटमेंट प्रैक्टिस के वक्त पूरी होती थी। एक ज़रूर है, CCL में लोग काफ़ी तादाद में आते हैं देखने। 13 ओवर की समाप्ति पर 77 पे 3। पहले बल्लेबाजी वीर मराठी की और अब तक 77 रन बना चुके हैं। इस औसत से जाएंगे 5.92 के औसत से जाएंगे तो 118 रन पर पहुंचेंगे। 8 के औसत से जाएंगे तो 133 पर जाएंगे। उनको एक्सेलरेट करना चाहिए, अभी ये वक्त है, ये मौका है। कार्तिक राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर, पार्ले 2020 कुकीज एंड से। और आप सेलिब्रिटी लाइव एक्सक्लूसिव MTS यूज़र के लिए डायल कर सकते हैं 50505 पे और उनसे बात कर सकते हैं। सात ओवर बाकी, 5.92 की औसत से खेल रहे। हालांकि बीच में थोड़ा सा उनका औसत कम हुआ था, बट जब दुधवाड़ कर और खेल कर क्रीज पर आए तभी से रन रेट काफ़ी बढ़ चुका। अब क्रूशल स्टेज पे है ये गेम, 13वां ओवर है और यहाँ पे अगर वीर मराठी विकेट नहीं खोते हैं तो यहाँ से टेक ऑफ करने का वक्त आ गया है उनको। उनकी इनिंग को बिल्ड करने के लिए टेक ऑफ का टाइम आया है और यहाँ पे अगर रन मारते हैं तो उनका मोमेंटम उनकी तरफ आ जाएगा और अगर विकेट खो लेते हैं तो कर्नाटक फिर से वापस गेम में आ जाएंगे।
काफी तादाद में लोग आए स्टेडियम में कोची। केरला स्ट्राइकर्स की होम ग्राउंड पे और ब्यूटीफुल शॉट, कवर ड्राइव, काफी बेहतरीन शॉट, सब कुछ सही इस शॉट में। लेंथ पे बॉल, अच्छा टाइमिंग किया उस बॉल पे और लीन हुए और एक टेरिफिक कवर ड्राइव देखने मिला। जी अमोल, बहुत ही बेहतरीन कवर ड्राइव था और सब कुछ सही था इस स्ट्रोक में अगर देखा जाए तो। और जैसे मैंने कहा कि निपुर के आने से एक मोमेंटम बन रहा है वीर मराठी के लिए। 16 रन पर पहुंच गए, हालांकि सिर्फ 9 गेंदे खेले, तो उन्होंने ये इनिंग को एक इम्पटस दे दिया है। और थिक आउटसाइड एज थर्ड मैन की तरफ गया, बट सिर्फ 1 रन मिलेंगे इस बार। 83 for 3 और देखने मिल रहा है सर यहाँ पे कि उनका रन रेट बढ़ाने की कोशिश है वीर मराठी को। एक पार स्कोर क्या होगा आपके हिसाब से? एक पार स्कोर इस मैच में क्या होगा? यहाँ से अगर 60-70 रन आ जाते हैं तो ये गेम अच्छी बन जाएगी। 140 के आसपास रन बन जाएंगे तो वीर मराठी ये गेम बना सकते हैं। और ये बेहतरीन शॉट, काफी ऊंची हवा में और एक बेहतरीन कैच, बेहतरीन कैच। बहुत मुश्किल सा कैच था, काफी देर तक हवा में थी गेंद और वीर मराठी को एक और झटका। शॉट तो अच्छा लगाया था लेकिन उतनी पावर से नहीं मार सके और बाउंड लाइन पे बेहतरीन कैच पकड़ी गई। देख सकते हैं कर्नाटका बुलडोजर्स के सपोर्टर्स काफी उत्साही। शरद केलकर गॉन 21, 83 for 4। चौथी विकेट गिरी वीर मराठी की पिछले गेंद में और बहुत ही बेहतरीन कैच ले लिया लॉन्ग ऑफ पे। श्रृंगारपुरे आ गए क्रीज पर क्योंकि शरद केलकर इस तरह से आउट हुए। छक्का मारने की कोशिश और लॉन्ग ऑफ ने कोई गलती नहीं की। हालांकि लॉन्ग ऑन के फील्डर उनको डिस्टर्ब करना चाहते थे पर उन्होंने बहुत अच्छा कैच लिया, बहुत अच्छा। ये कैच लेते वक्त अगर जो पीछे फील्डर था अगर उसके पैर बाउंड्री लाइन को टच हो जाते हैं तो क्या होता? सर आप कोच है, आप ही बताएं क्या होता। और एक बेहतरीन शॉट मिड ऑफ की तरफ। 14 ओवर में 85 रन और 4 विकेट खोकर वीर मराठी एक अच्छी पोजीशन में।
वीर मराठी की पहली बल्लेबाजी करने की कोशिश, 4 झटके लग चुके हैं। पहले शरद खेलकर वाज द लास्ट मैन, 21 रन बनाए उन्होंने, और दूधवाड़कर जो 18 रन बनाकर नॉट आउट है। स्कोर 85 पे 4, और बहुत इम्पोर्टेंट फेज, बहुत इम्पोर्टेंट 6 ओवर। और मेरे साथ जुड़े हैं द एक्सपीरियंस चारू शर्मा। धन्यवाद अमोल, बहुत ही ये आपने कहा इम्पोर्टेंट कड़ी, और यकीनन क्योंकि अगर वीर मराठी इसको ये मैच जीतना है तो 140 से कम बनाना तो बिल्कुल चलेगा नहीं, क्योंकि कर्नाटका बुलडोजर्स की जो बल्लेबाजी बहुत ही तगड़ी है। तो अब रन बनाएगा तो कौन बनाएगा? दूधवाड़कर के आने से बहुत फर्क पड़ा है, सिर्फ 11 गेंदों में 18 रन। और दूसरी तरफ से शरद केलकर ने पहले अच्छी 31 रन बनाए थे पहले मैचेस में, आज थोड़ा सा चुक गए, बल्ले पर गेंद अच्छी तरह से आ नहीं रही थी, टाइमिंग नहीं पाया उन्होंने। 21 रन बनाए जरूर, लेकिन 24 गेंदों में, यानी कि बिलो 100 स्ट्राइक रेट, और वो भी T20 के मैच में, बड़ा मुश्किल। अगर आप 5-20-20 डायल करें तो CCL मैच के लिए टिकट जीत सकते हैं, और प्राइज भी। ये मोबी फ्यूजन की आपको याद दिला दें कि अगर आपके फेवरेट सेलिब्रिटी से आप बात करना चाहते हैं लाइव, तो MTS यूजर्स के लिए एक्सक्लूसिव नंबर है 50505। और अगर आप CCL मैचेस के लिए टिकट जीतना चाहते हैं या एक्साइटिंग प्राइजेस, तो MTS यूजर्स डायल करें 52020, यानी कि 52020, और उसी नंबर की वजह से आप CCL स्कोर और बाकी CCL की खबरें भी पा सकते हैं। लेग स्टंप के बाहर, यस नो, लेकिन आसान रन था लेग बाय। तो आप कह रहे हैं यहाँ पे 140 रन बनाने होंगे वीर मराठी को। चलो आप मुझे एक नंबर दे दो, आपका नंबर क्या लगता है आपको, वीर मराठी किस स्कोर तक पहुंच जाएगी? देखिए मौका अभी भी है, क्योंकि मैंने कहा ना अभी भी अच्छे बल्लेबाज हैं उनके, दूधवाड़कर आगे बल रहे हैं, लेकिन 10 रन प्रति ओवर मालूम नहीं, अगर वाइड देते रहे तो बन भी सकते हैं। लिटिल डिसअपॉइंटिंग अभिमन्यु, बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, क्योंकि कर्नाटका बुलडर्स के जो गेंदबाज अभी आने को हैं वो काफी अच्छे हैं, तो इसलिए ये जो 10 रन प्रति ओवर बनाने हैं 140 पहुंचने के लिए, ये मुझे लगता है कि वीर मराठी इसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। चलिए एक स्कोर बताता हूं आपको, 134। पल्लू जी ने कहा था 140, 134। चारू शर्मा एक और वाइड गेंद, आप बदलना चाहेंगे? ये भाई ये अभिमन्यु मेरी बात को मतलब खराब करना चाह रहा है। नहीं, देखिए अतिरिक्त रन की वजह से बहुत मदद मिली है वीर मराठीज को, लेकिन बल्ले से जो रन बनने लंबे लंबे शॉट मार के, वो अभी तक बहुत कम बने। सिर्फ एक ही छक्का मारा रितेश देशमुख ने। बहुत ही अच्छा शॉट, उम्दा शॉट कवर्स के दिशा में, और 4 रन। और जो आप कह रहे हैं 10 की औसत से खेलना चाहेंगे वीर मराठी, और वो दे आर ऑन कोर्स। हाँ जी, शॉट तो अच्छा था, लेकिन ये फील्डिंग हो जानी चाहिए थी। पैर से फील्ड करना चाहा, लेकिन बॉल थोड़ा सा उनको चकमा दे गई। लेकिन स्टार दर्शन बहुत बड़े स्टार हैं, उनको यहाँ देखना ही बहुत बड़ी बात है। और हालांकि शरीर काफ़ी बड़ा है, लेकिन फुर्ती थोड़ी सी कम, और नीचे मुड़कर झुककर उनको फील्डिंग करनी चाहिए थी। पैर से करना चाहा, चूक गए। मैं अभी कहता हूं कि 134 तो आपने बुलवा दिया, तो चलो 134 ही सही, लेकिन उसी के आसपास, ज्यादा भी नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं। बेहतरीन शॉट, एक और चौका, और काफी प्रोडक्टिव ओवर सो फार। 11 रन दे चुके हैं इस ओवर में, 13 रन माफ कीजिए फिलहाल। और ये दूसरा लगातार चौका, बहुत ही बढ़िया शॉट दूधवाड़कर का। तो सिर्फ 14 गेंदों में 27 रन, बेहतरीन का स्ट्राइक रेट दूधवाड़कर का। अच्छे करारे शॉट, और जो पहले बल्लेबाज आए थे वीर मराठीज के लिए, वो बिल्कुल टाइमिंग नहीं पा रहे थे, और उनकी बिल्कुल विपरीत दूधवाड़कर की टाइमिंग ही टाइमिंग। गेंदबाजी इतनी बुरी नहीं है फिलहाल। उन्होंने आकर गेम का रुख बदल लिया है।
सारा एक्शन देख सकते हैं आप youtube.com/CCL पर। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर जगह दी, लेकिन कवर स्वीपर की वजह से सिर्फ एक ही रन, बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ। अरे रन आउट हो सकता था यस नो में, लेकिन लगता है कि प्रदीप जो विकेट कीपिंग कर रहे हैं थोड़ी सी उनके चोट जरूर लगी है। ओवर की समाप्ति, 15 ओवर समाप्त, 4 विकेट खोकर 99 वीर मराठी।